رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ جل شانہ کو امن والوں کی توفیق سے اور اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت و بغایت سے ہم حافظ صاحب قبلہ کے گھر میں آستانہ میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں سرکار کی تشریف آوری کی خوشی میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے. حاضرین محترم، میلاد پاک کی محفل یا محفل میلاد النبی نام ہے اللہ رب العزت کے اس شکر کا جو نعمت عظمی اس مالک نے محبوب کی شکل میں ہمیں دی ہے. واہ واہ بے شک بے شک بے شک بے شک کیا کہیں اس کے علاوہ محفل میلاد کی کوئی ڈیفینیشن نہیں بے شک اور نہ ہی ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز کو میلاد پاک کی محفل کہتے ہیں. ہم محفل میلاد میں ابھی حدیث میں نے پڑھنی ہے اس لیے آپ کو پہلے میلاد کی محفل کی ڈیفینیشن یاد کرا دوں. محفل میلاد اس محفل ذکر کا نام ہے جو ذکر، جو اللہ کا شکر، جو اللہ کی حمد ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب کی شکل میں جو نعمت عظمی نعمت کبریٰ ہمیں دی ہے اس پر رب کا شکر ادا کریں. واہ بے شک بے شک بے شک بے شک. اور زیبکار جسے نبی پاک سید الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر جس کے دل میں خوشی کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں ہوتے ہیں، سمجھو ایمان ہے. واہ 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 سمجھو ایمان ہے. اگر اندر حرارت نہیں پیدا ہوئی یا نہیں ہوتی تو میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ پھر تھوڑا سا سوچ کہ اپنے بیٹے کی ولادت پہ تمہیں خوشی. کیا بات. اس نبی نے تو ایمان کا معیار یہ بتایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ. ایمان کی کسوٹی تو اس محبوب نے ہمیں دے دی تھی. بے شک واہ سبحان اللہ کسوٹی ہمارے پاس ہے. بے شک کسی اعتبار سے کائنات کی کسی چیز کی محبت نبی کی محبت کے برابر نہیں. بے شک بے شک بے شک. وگرنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی تو کہا تھا نا کہ عمر تو کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے محبوب نے ہاتھ پکڑا نا فاروق اعظم کا. صحیح بخاری کتاب النذور میں یہ حدیث حافظ صاحب کی پروگرام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اسی سے دس دیں. مالک تیرے حبیب کی یاد میں بیٹھے ہیں. اللہ محبوب کے غلاموں کو بڑے امتحان میں نہ ڈالے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہے میرے محبوب نے. خوش نصیبی ہے عبداللہ بن ہاشم، خود خوش نصیبی ہے کہ آقا کائنات
रहमत शश जिहाद का दस्ते अकदस और फारूक आजम का हाथ में पकड़ा तो फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका इस कायनात में अपनी जान से बढ़कर हर चीज से आपसे मोहब्बत करता हूँ। बेशक। हुजूर, कायनात की हर चीज से बढ़कर आपसे मोहब्बत है सिवाय जान के। तो मेरे महबूब फरमाने लगे कि हत्ता कून अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिक औ कमा काल, फरमाए उमर बात अभी नहीं बनी, बात अभी नहीं बनी। आका बनेगी कब? फरमाया जब जान से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत करो। तो फिर फारूक आज़म ने कहा, ला अंता हब्बु इलैहि मिन नफ्सी, आका अब तो मेरी जान क्या, अब कायनात में लजपाल सबसे बढ़कर अगर मोहब्बत है तो बस आपसे ही। तो सहाबा इकराम का तो वैसे भी तकिया कलाम यही हुआ करता था, और सही बुखारी में जनाब सिद्दीक अकबर का ये लफ्ज थोड़ा सा मुख्तलिफ मिलता है हमें। सारे सहाबा यही करते हैं, मेरी माँ कुर्बान मेरा बाप कुर्बान। किबला सिद्दीक अकबर का मैंने कौल पढ़ा है सही बुखारी में, सिद्दीक अकबर कहा करते थे, फदैना का आबाना व उम्महाताना। सुभान अल्लाह, सारे ये सुभान अल्लाह। माँ कुर्बान मेरा बाप कुर्बान, पर अबू बकर का दिल ये नहीं कहता कली माँ और कले बाप को कुर्बान करो। फदैना का आबाना व उम्महाताना, अबू बकर के जिसको बाप होने का शरफ हासिल है, जो अबू बकर की माँ रही, दिल करता सबको कदमों पे निकाल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मतो शाने मुस्तफा, जिंदाबाद, मिलादे मुस्तफा, जिंदाबाद, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, नारे हैदरी, या अली। भाइयों, आपने बड़ी बड़ी अजीम महफिल मिलाद की रोदाद सुनी होंगी, देखी होंगी, सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी, लाइव टीवी पर भी देखी होंगी, कभी उस मुल्क की कभी किसी और मुल्क की बड़ी बड़ी महफिलें जिसमें 100 उम्रे की टिकटें भी दी जाती हैं। ये सारी आपने घर बैठ के टीवी की स्क्रीन पे देखी होंगी। मगर आज मैं जिस महफिल मिलाद की आपको बात और रुदात सुनाना चाहता हूँ ना, सुभान अल्लाह, ये महफिल मिलाद मस्जिद नबी में हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद पढ़ने वाले, मिलाद करने वाले, सुनने वाले सारे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सहाबा, सहाबा इकराम है। और इस महफिल मिलाद पर खुशखबरी आसमानों से लाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। और गुलामों को ये खुशखबरी सुनाने वाले मेरे आका और मौला है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, मेरे महबूब ने ये खुशखबरी आके सुनाई है। सुभान अल्लाह। ज़ीवकार, हमारे तमाम मकातब फ़िक्र के जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सब के मदारस में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जब दौरा हदीस का इम्तिहान देते हैं ना, तो आपने नाम सुना है, सिहा सित्ता कहते हैं। हदीस की 6 मशहूर मुस्तनद ऑथेंटिक बुक्स को सिहा सित्ता कहते हैं। उन सिहा सित्ता में 3 मुस्तनद किताबों में ये हदीस है जो मैं सुनाने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम जिल्दोम किताबु ज़िक्र व दुआ में ये हदीस है। जामे तिरमिज़ी अदाबुद्दावात अबवाबुद्दावात में ये हदीस है। सुनन निसाई अदबुल कुदा में ये हदीस है। 3 मुस्तनद किताबें जो हम दौरा हदीस का इम्तिहान देने से पहले पढ़ते हैं, उस्ताद हमें पढ़ाते हैं। ये 3 हदीस की मोतबर कुतब में ये हदीस मौजूद है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रिवायत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रावी का नाम भी याद कर लें। क्या नाम है? हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला, खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि एक दफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा के अपने काशाना अक़दस में तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका व मौला नमाज के बाद अपने घर में काशाना अक़दस और रहमत में मेरे महबूब तशरीफ ले गए।
सहाबा किराम जो मस्जिद में बैठे थे ना, उन्होंने कहा यार करीब करीब आ जाओ, सर्कल में बैठो, आज हमने कुछ काम करना है। वाह वाह वाह। हदीस की किताब सुना रहा हूँ, सुभान अल्लाह, 3 कुतुब हदीस में ये हदीस है। माशाअल्लाह। सहाबा किराम ने इकट्ठा कर लिया। होता है बाज़ औक़ात एक नमाज पढ़ने के लिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग बंदे जाते हैं, तो बाज़ औक़ात सर्दियों में, जिस तरह अब सर्दियाँ आ रही हैं, असर पढ़ने गए, मगरिब पढ़ के आए, होता है ना, हमारा भी सम टाइम जी करता है, बारिश हो रही है, ये ऐसे को हालात हैं, तो यार 2 पढ़ के ही जाएंगे, बैठ जाते हैं। तो मस्जिद में कोई 4 नमाजी उस सफ पे बैठे हैं, 2 दरमियान में, 2 इधर, 6 उधर, 2 उधर, 2 उधर, होता है ना बाज़ औक़ात। जी जी। तो हमारी मस्जिद में जितने भी ग्रुप और जितनी भी टोलियां होती हैं बैठी हुई, सब की मुख्तलिफ मौजूआत होते हैं। यहाँ बैठे का मौजू कुछ और है, इधर बैठे का कोई और मौजू है, दरमियान वाले का कोई और, इस तरह मुख्तलिफ मस्जिद में बैठे हुए लोगों, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सहाबा किराम ने सर्कल में बैठ के ये बात क्यों की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वजह तो ये है कि आप जब हज़रत साहब के पास आते हैं तो जिक्र शरीफ कराने के लिए ये भी आपको कहते हैं ना, भाई दायरा बना लो, भाई करीब करीब आ जाओ, दायरा बना लो। तो असल ये सुन्नत वही साहबा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या और फिर दायरा बनवाने की वजह यह है कि कोई ये ना कहे कि सबका कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर प्रोग्राम नहीं था इस काम करने का, बस 2-4 साहबी नुक्कर में बैठे ये काम कर रहे थे। वाह 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 मैं बड़ी खास बात कहना चाहता हूं। वाह वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। भाई ये बात जो आप हदीस में है ना, ये मस्जिद में बैठे हुए थे इस कॉर्नर में, वो ये बात कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। वाह वाह, सारे ही कर रहे थे। उन्होंने कहा इधर आओ, महफिल मिलाद होने लगी है, सुभान अल्लाह। करीब करीब आ जाओ, करीब करीब आ जाओ, सारे करीब आ गए। सुभान अल्लाह, सरकार का जिक्र शुरू हुआ है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इतने में जिब्राइल आ गए। सुभान अल्लाह, इधर काम शुरू हुआ है, सुभान अल्लाह, इधर अभी मस्जिद नबी शरीफ में काम शुरू हुआ है, सुभान अल्लाह उधर से जिब्राइल आ गए। सुभान सुभान अल्लाह। इतने में मेरे महबूब बाहर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मैं यहाँ एक फिक्रा बोलना चाहता हूँ। सुभान पता अल्लाह। चला वो जो न्याजी साहब ने नात शरीफ में शेर लिखा है ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। बुलाते हैं। और ये भी पता चल गया कि मोहब्बत और खुलूस के साथ महफिल हो ना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह सुभान अदब व आदाब के साथ महफिल हो रही हो, सरकारे दो आलम का जिक्र हो, तो सैयद आलम की उस महफिल पे नजर करम जरूर होती है। सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। हज़रत साहब मेरे आका और मौला तशरीफ लाए, सुनिए हदीस के लफ्ज़ सुनिए। मैंने पहले रेफरेंस दे दिया कि 3 मोतबर किताबों में ये हदीस है। अब सुनिए, मेरे महबूब तशरीफ लाए और आके पूछते हैं, और यहाँ बड़ा खास नुक्ता आपने तवज्जो रखनी है। मेरे लजपाल ने आते ही पूछा माजला सकुम, माशाअल्लाह, क्या पूछा? माजला सकुम। माजला सकुम, मत कैसा? वाह ये जलसे की हैत बना के बैठे हो, बड़े अदब से बैठे हो, दोदानो बैठे हो, अजला सकुम, ये जलसा कैसा है, ये महफिल कैसी, सुभान अल्लाह, ये तुम्हारा अंदाज ये बता रहे ये कैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यही रुकता हूँ और एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ, साहबा ने ये काम करने से पहले, आज तो लोग बिदअत की ना जाने क्या क्या बकबक करते हैं, क्या तारीफें करते हैं, मैं पूछना ये चाहता हूँ, अगर साहबा ने ये काम करने से पहले मेरे आका से पूछा होता, तवज्जो रखना जरा, वाह 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 वाह, सवाल नहीं। तवज्जो है, बेशक बेशक। अगर मेरे महबूब से ये इजाजत ली होती, पूछा होता, तो लजपाल बाहर तशरीफ लाके पूछते क्यों बैठे हो, ना ना, बिल्कुल बेशक बेशक। जलसा कैसा है, कैसे बैठे हो, पूछते। नहीं नहीं नहीं। भाई पता चला
अंदर हो ना इश्क और मोहब्बत और प्यार, क्या बात, बेशक बेशक। तो फिर ये खुद ही बता देता है ये कर वो कर। वाह 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 फिर इश्क दलील नहीं मांगता कि अभी हुक्म आया है कि नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, इंतजार नहीं करता। सुभान अल्लाह, कुरान ने फकत इतना कहा है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। सुभान अल्लाह। कुरान ने ये नहीं कहा था महबूब वजू करे और पानी मेरे महबूब के बदने मुकद्दस से लग जाए तो जमीन पे गिरने न देना। कुरान ने ये नहीं कहा था, फकत इतना कहा था मेरे नबी का अदब करो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत व शान मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत व शान मुस्तफा जिंदाबाद, मिलादे मुस्तफा जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। यार आज हम तो इतने भोले आदमी हैं जी। मौली साहब, हाफिज साहब, मुफक्किर इस्लाम साहब, हजूर किबला, मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा है कि तुम नबी का नाम चूमते हो, दलील? अल्लाहु अकबर। भाई हम तो इतने भोले आदमी हैं, इस पर दलील? सुभान अल्लाह, वाह यारो नबी के नाम को चूमने पे दलील? वाह वाह, मौलाना रूम से पूछो किबला। मौलाना रूम लिखते हैं, कहते हैं पाए सग बुसीदा मजनू, पाए सग बुसीदा मजनू, खल्क गुफ्त ईंच बूद, गुफ्त गाहे गाहे इधर कुए लैला रफ्ता बूद। मौलाना रूम लिखते हैं किसी ने कैस को देखा, मजनू को देखा, पाए सग बुसीदा मजनू कि किसी कुत्ते के पैर चूम रहा है। किसके? कुत्ते के पैर चूम रहा है। खल्क गुफ्ती चबूत, ओए पागल ही था ना, तो पागलों वाला ही काम किया है ना। कुत्ते के भी पैर चूमे जाते हैं। अल्लाहु अकबर। कुत्ते के पैर चूम रहा है, पागल है? उसने कहा पागल हूँ, चलो पागल कह लो, लेकिन बताऊं चूम क्यों रहा हूँ? क्या बात है, बताऊं चूम क्या रहा हूँ? गुफ्त गाहे गाहे इंदर कुए लैला रफ्ता बूद। पागला ये कोई आम कुत्ता है, मेरी लैला की गली से गुजरता है इसलिए कदम चूम रहा हूँ। यार दुनिया वाला अपनी महबूबा की गली से गुजरने वाले कुत्ते के कदम चूमे और तुम परेशान हो जाओ कि अपने आका का नाम चूम रहे हो। यार इतने मारे हैं हम यार, कोई दलील नहीं है। कोई दलील है या नहीं? कोई दलील नहीं है, बस मेरे नबी का नाम है मैं चूम रहा हूँ बस। वरना दलील तो बड़ी मजेदार है। कुरान कहता है, आपको इजाजत है जी माशाअल्लाह, सुनिए जरा कुरान क्या कहता है। अल्लाह फरमाते हैं अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत वाले दिन मौलवी के मुंह पे मोहर ला देनी है। चुप होए, तुमसे मैंने नहीं पूछना क्या करता रहा है, क्या बोलता रहा है, क्या किया तूने। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। तवज्जो, फरमाया तेरे हाथों से खुद बात करेंगे, तेरे हाथ हमें बताएंगे कि क्या क्या करता रहा है तू, इनसे क्या किया है। मैं जहाँ लाना चाहता हूँ पहुँचिए। हम सब आपके सामने को भी कुर्बान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान क्या शौक आपने पैदा किया। सुभान नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। फरमाया तुझसे तो मैंने पूछना ही नहीं, बंद रख अपना मुंह। वाह, हमें पता है स्टेजों पे बैठ के क्या क्या तू कहा करता था। मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ, क़यामत का मंजर जरा जहन में लाइए। क़यामत का मंजर जहन में है, रब ने मुझसे नहीं पूछना। सैयद आलम फरमाते हैं ना सैयद वुलद आदमा यौमल क़ियामा वला फखर। फरमाया क़यामत वाले दिन लिमनिल मुल्कुल यौम, बादशाहत अल्लाह की होगी, हुक्मरानी मेरी होगी। सैयद वुलद आदमा, मैं पूरी औलाद आदम का सैयद और सरदार, हुक्मरानी मौला की, बादशाहत परवरदिगार की। लिमनिल मुल्कुल यौम, बादशाहत अल्लाह की होगी, सरदारी मेरे मुस्तफा सुभान 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 अल्लाह। और मकाम महमूद पर
ताजे शफात पहनकर मेरे आका बैठे होंगे। सुभान अल्लाह, जरा मंजर एक लम्हे के लिए ध्यान में लाइए। सुभान अल्लाह, सुभान ताजे शफात पहनकर मकाम महमूद पर लजपालों के लजपाल आका तशरीफ फरमा होंगे। सुभान रब ताला सवाल करेगा, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। वाह अरे वाह, हाथों बताओ क्या क्या इसने किया है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात, मेरे हाथों में मेरा वाह। अंगूठा भी लगा हुआ है। वाह वाह, मेरे सुभान हाथों में मेरा अंगूठा भी है। सुभान और यारों बताओ तो सही, जब रब मेरे तेरे हाथों से पूछेगा बता इसने क्या किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसने क्या क्या किया है, तो तेरा मेरा हाथ बताएगा नहीं। या अल्लाह और तो पता नहीं क्या किया है। ये जो कमरी वाले बैठे हैं ना सामने ताजे शफात पहनकर, इनका जब भी नाम सुनता था चुप के आंखों से देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, किबला याद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं बताना ये चाहता हूँ, मन में होना मोहब्बत, लेकिन दलील नहीं इश्क मांगता। सुभान अल्लाह, इश्क दलीलें नहीं मांगता, इश्क किताबों का हवाला नहीं मांगता। इश्क कहता बस ये काम करना है। बस, सुभान अल्लाह, इसमें मेरे महबूब की अजमत है। सुभान अल्लाह, बेशक, हमने घर को सजाना है, लाइटिंग करनी है। ये दलील सहाबा ने किया। सहाबा की शादियां नहीं हुई थी। सुभान अल्लाह, किस साहबी ने शादी से पहले लाइटिंग लगाई थी। सुभान अल्लाह, खुदा का खौफ कर, हमसे दलील मांगता है तू दे ना। तूने पुत्र की शादी से पहले घर क्यों सजाया। हमने पुत्र की शादी पे सजाया, अपने आका के मिलाद पे क्यों ना सजाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इश्क दलील नहीं मांगता। शर्त यह है कि हो इश्क बेटे से बढ़कर जब करना है तो फिर वो करना जिससे दुनिया को भी पता चले। तेरे मेरे फरिश्ते राइट लेफ्ट पे जो बैठे इनको भी पता चले वाकई नबी की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह। यही तो मोहब्बत का तकाजा था ना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे महबूब ने पूछा मैं आज ला सकूं जलसा कैसा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किਵੇਂ बैठे हो। सुभान अल्लाह। आगे हदीस का जुमला अगला सुनिए। खुदा की कसम साहबा ने मेरे आका से नहीं पूछा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मेरे मुस्तफा जाने रहमत से साहबा ने नहीं पूछा था, बस मन में आया। मन में आया यार आज इज्तिमाई तौर पर भी महबूब का जिक्र करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबा ने इज्तिमाई तौर इकट्ठे हो, जो भी सर्कल बना लो, हल्का बना लो, बैठे। मेरे महबूब ने है देखी, सर्कल है, बड़ी खास अंदाज में बैठे हैं। इस तरह बैठे, तवज्जो रखना, मैं बड़ा खास जुमला बोलने लगा हूं। इस तरह बैठे हैं जिस तरह मेरी मौजूदगी में बैठते हैं। मुझे वैसे मजा आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, शान मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद, आलिया नंगल शरीफ जिंदाबाद। मेरे सुभान महबूब अल्लाह, ने है देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद पे आने वालों, अल्लाह की कसम तुम्हारे लिए भी बेबहा बरकतें। सुभान अल्लाह, मेरे नबी की महफिल में उस तरह बैठा करो जिस तरह सहाबा आका की मजलिस में बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह, जो किबला महरूम होके जाते हैं ना, तो शायद इस महफिल पाक का वो अदब नहीं करते जो हमें करना चाहिए था। मगर ना हमारे उलमा मशाइख ने लिखा है, सरकार के जिक्र की महफिल में इस तरह बैठो और अपने आप को इस तरह तसव्वुर करो हम आका की मजलिस में बैठे हैं और हमारे आका हमारे अंदर मौजूद है सुभान, और हमारी हरकतों सकनात को सैयद आलम देख रहे हैं। हमारे बेशक, उलमा ने लिखा है। बेशक, बेशक, और हमारे अंदर कभी हम महफिल मिलाद में बैठे हों, हम साथ मोबाइल पकड़ा होता है, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, कभी हमने खोला हुआ है, क्या और क्या करते रहते हैं, कभी बेवजू बैठे होते हैं। साहबा मेरे महबूब की मजलिस में बेवजू आते थे। मैं और आप बेवजू क्यों बैठेंगे। हम जो बरकत से महरूम होते हैं ना, जिस तरह आए किबला उसी तरह चले गए, तो अल्लाह की कसम उसकी और कोई वजह नहीं है। फकत यही वजह है कि हमने उस तरह अदब उस महफिल का नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए था। मगर ना उस तरह अदब करे तो मन की दुनिया न बदल जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
लजपाल पूछते हैं मा अजलसकुम, कैसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कालू, सुनिए साहबा क्या कहते हैं। साहबा कहते हैं जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बेका। आका, अल्लाह ने आपको भेजकर जो हम पे एहसान किया, उस एहसान का नतीजा है कि हम मुसलमान हुए, दीनदार हुए। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत व शान मुस्तफा, जिंदाबाद, नारे हैदरी, या इली, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वमन्ना अलैना बिका। सुभान हजूर, आपको भेजकर जो रब ने एहसान किया है। मैं सुभान मादरत खा हूं कि मन्ना का तर्जमा मैं कर नहीं रहा। मैं मन्ना का तर्जमा नहीं कर सकता। क्यों? कि इस गरीबनी उर्दू के पास मन्ना की ट्रांसलेशन नहीं है। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, कहो तो कुरान पेश कर दूंगा अभी। अपने आका की नजर इनायत से कुरान, अल्लाह का कुरान पेश कर सकता हूं। ठहरिए, मैं करता हूं पेश कुरान। मैंने कहा है कि मन्ना का तर्जमा मेरे पास नहीं है, बल्कि लुगत उर्दू के पास नहीं है, उर्दू लैंग्वेज के पास नहीं है। देखिए, मैं उसकी पहले मिसाल दे दूं आपको, फिर जरा मजा आएगा। जी वकार, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा किया है, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने रहमान का तर्जमा क्या किया है? बड़ा मेहरबान। हाफिज साहब ने बड़ी धूप प्यास में मुझे शेल्टर दिया कि यार धूप बड़ी है, तू जरा इधर आ जा, छांव में खड़ा हो जा, पसीने से शराबूर है, ठंडा पानी पी, थोड़ा सा आराया, रोटी खिलाई, चाय पिलाई, शेल्टर दिया। जाने से वो कहता है हजरत आपकी बड़ी मेहरबानी। क्या बात, क्या बात। मैंने कह दिया हाफिज साहब, उस बेचारे राहगीर ने कह दिया हाफिज साहब किबला आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। सुभान अल्लाह के बंदो, ये बड़ी मेहरबानी तो तर्जुमा हमने रहमान का किया था। ये बड़ी बड़ी मेहरबानी तो हमने रहमान का तर्जुमा किया हुआ था। तुमने तो लफ्ज़ रहमान की कदर ही नहीं की, तुम्हें तो पता ही नहीं। और इस गरीबनी उर्दू के पास अब कोई लफ्ज़ नहीं था, हमने तर्जमा कर दिया बहुत बड़ा एहसान। अल्लाह की कसम, ये भी तर्जमा नहीं है यारो। एहसान अरबी का लफ्ज़ है। कुरान मजीद में 12 दफा ये लफ्ज़ आया, 6 दफा तो सिर्फ यही आयत है, बिल वालिदैन एहसाना। 6 दफा ये आयत आई है कुरान में। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, 6 दफा लफ्ज़ एहसान आया, कुल 12 दफा। बेशक, कुल 12 दफा लफ्ज़ एहसान कुरान मजीद में आया है। बताना ये चाहता हूँ, लफ्ज़ एहसान कुरानिक वर्ड है, अरबिक वर्ड है, मगर इसके होते हुए किबला, इसके होते हुए अल्लाह पाक ने लफ्ज़ एहसान जो मशहूर है, मन्ना की निस्बत मशहूर है, मन्ना की निस्बत एहसान लफ्ज़ मशहूर है, इसलिए कि हमारी उर्दू लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होता है। मशहूर लफ्ज़ को छोड़कर गैर मशहूर, गैर मारूफ लफ्ज़ बोला, क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान अल्लाह भी तो हो सकता था ना। बेशक बेशक बेशक। लक़द मन्नल्लाह, ऐसा लफ्ज़। और आपने ये किबला हाफिज साहब से सुना होगा, एक लफ्ज़ की मौजूदगी में जब आइमा लुगत दूसरा लफ्ज़ इस वज़ा करते हैं ना, तो वो करीबुल मानी होता है, मुत्तहिदुल मानी नहीं होता। बेशक बेशक। लफ्ज़ मुश्किल नहीं है, सादा लफ्ज़ है कि एक लफ्ज़ की मौजूदगी में जब दूसरा लफ्ज़ बोला जाता है ना, तो वो करीब करीब उसके मानी होते हैं, यकसानियत नहीं होती। बेशक वो हम माना अपनी लफ्ज़ में हम कह देते हैं अपनी सहूलत की खातर, हम माना नहीं होते, वो करीबुल मानी होते हैं। उसकी कुरान पाक से एक मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़ वालिद के लिए, बाप के लिए लफ्ज़ अब भी बोला है,
بے شک بے شک اور لفظ والد بھی بولا ہے. بے شک بے شک اب والد بھی بولا ہے، اب بھی بولا ہے. جب اب لفظ موجود تھا پھر والد کی بولا. کیا بات واہ جب والد لفظ موجود تھا باپ کے لیے، فادر کے لیے، ڈیڈ کے لیے، پھر اب کی بولا. اب میں اور آپ ترجمہ باپ ہی کر دیتے ہیں، حالانکہ دونوں جگہ باپ ترجمہ نہیں ہے. بے شک بے شک ذرا عقیدے کی طرف ہی دھیان رکھنا. اس قال ابراہیم علیہ ابی ہے، توجہ رکھنا واہ تاکہ میرے دونوں مسئلے حل ہو واہ جائیں. واہ 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 عقیدہ بھی سیدھا ہو جائے نا. واہ 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 سبحان بھائی اللہ اب باپ کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، مامے کو بھی کہتے ہیں. واہ 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 کیا سبحان اللہ کیا سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ باپ کو بھی کہتے ہیں، چچا کو بھی، تایا کو بھی، ماما کو بھی. لیکن جو والد ہے وہ حقیقی باپ کو کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حقیقی باپ دادا وہ نسل جس میں سے ہوتا ہوا میں آپ آئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، اس کو والد کہیں گے. لیکن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مگر آپ کا اطلاق باپ کے علاوہ بھی ہوتا ہے. واہ بے شک بے شک بے سمجھ آ گئی. بے شک بے شک قال ابراہیم لابیہ، اب وہاں ابراہیم خلیل اللہ کا چچا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، کیونکہ آپ کا اطلاق چچا پہ بھی ہوتا ہے، تایا پہ بھی ہوتا ہے. بے شک بے شک اب قرآن نے آپ کی جگہ والد بولا. والد کا اطلاق باپ، دادا، پردادا اور نسل سے ہوتا ہے. بے شک بے شک اب ہمیں پرابلم کیا ہے؟ حافظ صاحب کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ باپ مراد، اب سے مراد باپ نہیں لے رہے، اب سے مراد چچا لے رہے ہیں. حافظ صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ داری ہے؟ کیا آپ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مراد نہیں لیتے، چچا مراد لیتے ہو؟ حافظ صاحب آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ حافظ صاحب کہتے ہیں مجھے مسئلہ نہیں ہے. ہاں سبحان اللہ کیا بات ماشاء اللہ وہ سے کون سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے آقا کا فرمان نہ پڑھا ہوتا کہ لم ازل انکل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا آدم سے حضرت عبداللہ علیہ السلام تک اور سیدہ حوا سے سیدہ آمنہ تک میں جس ماں کے رحم میں رہا یا جس باپ کے رحم میں رہا، میں پاک ماں سے ہوتا ہوا سیدہ آمنہ کے پاس آیا اور باپوں سے ہوتا ہوا سیدنا عبداللہ کے پاس. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضور قبلہ عالم. ہمیں مسئلہ اور کوئی نہیں ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس قال ابراہیم لابی کا ترجمہ باپ کر دیں تو وہ باپ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کا جد امجد بنتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں میرا نور اللہ نے کسی کافر میں رکھا ہی نہیں، میں تو پاکوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا اور بات انما المشرکون نجس، قرآن نے مشرکوں کو نجس کہا، ناپاک کہا ہے. میرے آقا تو پاکوں سے ہوتا ہوا سبحان آیا. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ میرے تو محبوب کی ہر ماں پاک رہی ہے، بے شک ہر جد پاک پاک رہا ہے. سبحان بے اللہ شک میرے آقا و مولا کے آبا بھی پاک، نسل بھی پاک. سبحان اللہ تیری نسل پاک، واہ واہ آپ کی نسل بھی پاک، آبا بھی سبحان پاک. اللہ ماشاء اللہ یہ تو میرے محبوب کا سفر سارا پاکوں کا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان ولادت سے پہلے پہلوں کو پاک کیا، ولادت کے بعد نسل کو پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اسی اللہ وقار میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کو، مانا میں نے بیان عرض یہ کیا ہے کہ ایک لفظ کے میں نے یہ آپ کو کہا ہے کہ منا کا ترجمہ کوئی نہیں ہوا، بے شک بے شک سورہ رحمان کا ترجمہ نہیں ہے نا. جی جی بس ایک فکرہ اور سن لو، صرف کلا لفظ منا کا ہی ترجمہ نہیں ہے اردو کے پاس. اللہ کی قسم جو بھی میرے محبوب کو رب نے دیا ہے نا کسی لفظ کا ترجمہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات بے شک بے شک بے شک ماشاء اللہ پوچھو علامہ صاحب سے، سبحان پوچھو اللہ. حضرت صاحب زادہ صاحب سے، اللہ نے میرے محبوب کو کوثر دیا، کوثر کا بھی کوئی ترجمہ نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا اور بات میرے حبیب کو جو کچھ ملا ہے کیا بات واہ اس غریبنی کے پاس ترجمے کا لفظ ہی نہیں ہے. بے شک بے رب شک نے اتنا دیا ہے. واہ واہ یہ منا کا بھی ترجمہ کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا احسان منا کا بھی ترجمہ نہیں ہے. ماشاء اللہ کیوں؟ اب رب تعالیٰ نے احسان کیوں نہیں بولا؟ 6-7 تو جہاد میں ایک تو عرض کرتا ہوں، اس لیے
ज़ी वक़ार आपने अल्लाह का कुरान पढ़ा, रब ताला ने फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यारो एहसान का इवज मौजूद होता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान का इवज, एहसान का बदला मौजूद होता है। इसलिए तो मालिक ने कहा कि हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान, तुम पर कोई एहसान करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तुम पर क्या कोई बात। एहसान करे तो उसके एहसान के एवज में तुम भी एहसान करो। बेशक। पता चला एहसान का बदला मौजूद होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। वाह। एहसान का सब्स्टिट्यूट, मौजूद। एहसान का इवज, एहसान का बदला कुरान कहता है। हाफिज साहब की डिक्शनरी में ये बात नहीं है, मैं अल्लाह के कुरान की बात करता हूँ। कहीं ये ना कहना पता नहीं किससे कहानियां सुनाई है, नहीं, सरकार का जो गुलाम है वो अल्लाह का कुरान पढ़ के अपने आका की बात करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान। बेशक। पता चला एहसान अल्लाह ने इसलिए नहीं बोला, एहसान का बदला मौजूद होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान अगर बोला जाता तो मौलवी ने फट फट बज के जाके हल जज़ाउल इहसान पढ़नी थी। रब ने लफ्ज़ ही वो बोला। वाह। मौलवी मुंह बंद करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बंद करे मुंह। सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने लफ्ज़ ही वो बोला, लक़द सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन्नल्लाह। कोई साहबी बोलता है वमन्ना अलैना बिका। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल बता तू आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गया, मूसा कलीमुल्लाह के पास भी, ईसा रूहुल्लाह के पास भी, खलीलुल्लाह तू सब के पास जाता रहा, बता कैसे हैं हम? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा क्या हज़रत बात जिब्राइल, या रसूलुल्लाह कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा और फलम अरा अफसल मिन मुहम्मदिन। आका मैंने आदम तो ईसा हर नबी के पास गया, उसकी सारी उम्मतों के पास हुजूर मैंने देखा है, मगर फलम अरा अफसल मिन मुहम्मद, आका हम जैसा मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब रब ताला ने मेरे नबी को बनाया बेमिसल था, बेशक जिसकी बेशक मिसल कायनात में मौजूद ही नहीं थी, बेशक। तो रब ताला ने अपने हबीब की बेइज्जत के लिए लफ्ज भी वो बोला जो लफ्ज की भी मिसल नहीं। वाह। क्या बात है, क्या सुभान अल्लाह। क्या क्या आफा, यही तर्जमा इसका है। आफा कहा गर्दीदाम मेहरे बुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम पर तू तो चीजें थी। सुभान अल्लाह, इसी हदीस का तर्जमा है। सुभान इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि एहसान का बदला मौजूद होता है, मन्ना का इवज मौजूद नहीं। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक। बात तो बड़ी आगे चले जाएगी, मगर मैं एक सेंटेंस बोल के बात खत्म करता हूँ। ज़ी वक़ार एहसान करने वाले को कहते हैं मोहसिन। वाह बेशक, बेशक, बेशक। एहसान करने वाले को, मोहसिन। ये मोहसिन रब की सिफत नहीं है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। और मन्ना करने वाले को कहते हैं मन्नान। वाह 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 क्या बात है, वाह। सुभान दो तो मजा आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तफसील में मैंने नहीं जाना, सुभान तफसील में नहीं जाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, मन्ना करने वाली जात को कहते हैं मन्नान। सुभान अल्लाह। एहसान करने वाले को कहते हैं मोहसिन। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान वाह अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, वाह। क्या बात है। क्या तो रब ताला की सिफत मन्नान है, मोहसिन नहीं। बेशक बेशक बेशक। अब क्यों वो मन्नान है, क्यों मोहसिन नहीं? वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब माशाअल्लाह। इस पर क्या क्या कहूँ। सुभान अल्लाह। फिर एहसान करने वाले ने जब एहसान किया है तो एहसान की शर्तें कितनी हैं? कम से कम 6 शराइत है एहसान की। सुभान अल्लाह, एहसान नहीं हो सकता 6 शर्तें ना हो तो। सुभान अल्लाह। तो अब इजाजत, नमाज का टाइम हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, तुझसे कहा था कि थोड़ी देर बारिश रोक ले, तूने हमारी गुनाहगारों की मान ली। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, क्या बारिश बात। हो जाती, हम इधर उधर जाते, महफिल थोड़ी सी इधर उधर हो जाती, कुछ
فرق آتا تنگ جگہ پہ زیادہ بندے اللہ تیرا شکر ادا کرتے. خدا کی قسم مجھے یوں لگتا ہے کہ مالک نے جب یہ مان لی ہے نا ہماری, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ عرض مان لی ہے نا مالک, سبحان اللہ, مہربانی فرما ہمارے سے کو تیرے حبیب کا ذکر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں برجستگی کے ساتھ اور خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم مجھے تو یوں لگتا ہے مالک نے محفل بھی قبول فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اجازت سبحان اللہ. دل نہیں کرتا وما علینا وما علینا الا البلاغ.